شریف کی تلاوت خدمات پڑھیں کی محفل ہوگی اے میرا مولا پاک کی خراب اس سب کو ثواب ہمارا پیارا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گروئی کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان عارف کسانہ۔ جی ناظرین، اس سمے ہم موجود ہیں ضلع گاندربل کے وانگت بابا نگری علاقے میں، اور آج بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ کا 97ویں عرس مبارک منایا جا رہا ہے، اور اسی بیچ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جناب میاں الطاف صاحب، اور ان سے ہی مزید جانیں گے کہ آخر یہ عرس جو ہے کس طرح سے منایا جا رہا ہے۔ حضرت جناب بابا جی صاحب کا یہ ہم 97 سال ہو گئے ہیں ان کی وفات کو، تو آپ نے دیکھا کہ کل سے لوگ آنے شروع ہو گئے تھے۔ آج ساری رات قرآن شریف کی تلاوت، درود و اذکار کی محفل جو ہے وہ رہی، ختم شریف جو ہیں وہ پڑھے گئے۔ سارے علماء حضرات جو تھے وہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس بابرکت مجلس میں شرکت کی، ختمات کی محفل میں، درود شریف کی محفل میں۔ صبح دعا کے ساتھ یہ تقریب جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ جموں سے بھی، خاص طور پر کشمیر ویلی کے ہر کونے سے لوگ اپنی عقیدت کے ساتھ اس عرس شریف میں شریک ہوئے، دعا میں شریک ہوئے۔ اور یہ عرس شریف جو ہے میرے پردادا حضرت میاں عبداللہ صاحب المعروف بابا جی صاحب لاروی جی صاحب بھی ان کو کہتے تھے، ان کا ہے، اور انہوں نے ان کا آج یوم وفات کے طور پہ ہم یہ عرس شریف مناتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی وفات کی پیشن گوئی شعروں کی صورت میں کئی سال پہلے کی تھی۔ تو جس تاریخ کی انہوں نے پیشن گوئی کی تھی شعروں کی صورت میں، اسی تاریخ کو پھر ان کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے دادا صاحب ڈائریاں لکھتے تھے، میرے والد صاحب ڈائریاں لکھتے تھے، تو وہ جب 1940 کی، 41 کی، 1950 کی ہم ڈائریاں پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس وقت بھی اتنی تعداد میں لوگ اس عرس شریف میں شرکت کرتے تھے۔ حالانکہ اس وقت سڑکیں نہیں تھی، پل نہیں تھی، بجلی کا انتظام نہیں تھا، بہت زیادہ برف پڑتی تھی، لیکن لوگ پیدل چل کر بھی عقیدت جو ہے ان کو وہ کھینچ کر لاتی تھی، اور وہ اس عرس شریف میں شرکت کرتے تھے۔ تو شکر ہے کہ آج کی یہ تقریب بھی اچھے طریقے سے انجام کو پہنچی، لوگ آئے، ملے، بات ہوئی، اور ان کی حاضری بھی زر شریف پہ ہوئی۔ تو میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ حضرت جناب بابا جی صاحب کے وسیلے سے ہم سب پر مہربانی ہو، کرم ہو، ہماری پریشانیاں دور ہوں، ہماری بیماریاں دور ہوں۔ شکریہ۔ الف اول دیجے کر خبر آندی تمہیں اور شکاوتاں جوڑ دانا جانی بس دادے جب شہر ساڑے تمہیں اور ولائے تالوڑ دانا ایسا پیار سی جے سجنا سونے دات میں لائے کے اکیاں موڑ دانا اے پیچھے غماں دے خوشیاں یا موڑ دادا تمہیں لکیاں میدانوں توڑ دانا بے بغداد نو کیوں تو لوڑ دائیں تیرے اندر پیر گیلان والا اے ماہ منزل آئے ہوتا
को नाई अंदर तेरे मकार बिस्तान वाला बैतुल दिल मुक़द्दस विलायत शाम वाली अंदर रोज़ा है नबी सुल्तान वाला वसीले अंदर तेरे हदीराब सिताम देखाण वाला। सर हम डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद तहसील कोकरनाग से हैं और हम सदियों से आते हैं। यहाँ इंशाल्लाह बहुत बड़ा इंतज़ाम है। हमने तकरीबन 10,000 लोग हैं यहाँ पर और इन लोगों ने रात को महफिल सजाई, ज़िक्र अज़कार किया और हज़रत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे जाके दुरूद सलाम पेश किया और इतने लोग आप देख रहे हो। इंशाल्लाह हम सदियों से आते हैं। ये वो फैज़ वाली जगह है जहाँ दुनिया बीमारी लेके आती है और तंदुरुस्त होके जाते हैं। जहाँ कोई भूखा आता है वो खाना पेट भर के और उम्र की रोटी कमा के जाता है। इंशाल्लाह ये ऐसी बहुत बड़ी दरगाह है जिससे सदियों से फैज़ दे रहे हैं और यहाँ के लोग जो भी आता है अपनी हाजात पूरी ले जाता है। बाकी मसला गोजरी में दूँगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं सदाम हुसैन डिस्ट्रिक्ट राजौरी के पंचायत हल्का पनिहाड़ से। इस साल मैं पहली बार आया हूँ इस उर्स शरीफ में जो हज़रत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है। हर साल ये इसी महीने में मनाया जाता है, तो मैं पहली बार आया हूँ, लिहाजा मैंने यहाँ पे वो मंज़र देखे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। इस ठंड के मौसम में अभी मेरे पीछे पहाड़ों पे अभी बर्फ़ उसी तरह है, फिर लोग दूर दूर से इस उर्स शरीफ में शिरकत करते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। और मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से लगभग यहाँ जम्मू वाया जम्मू यहाँ 5-5.5-600 किलोमीटर बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून आया है यहाँ आके और इंशाअल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगे इस मौसम में आने की, क्योंकि जब घास कटाई होती है उस टाइम ही अल्लाह की ज़ात हमें यहाँ हाज़िरी का मौका देती है। और आज उर्स शरीफ है, तब भी हमारी हाज़िरी अल्लाह पाक यहाँ आने की कबूल करे। मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं। हम अपनी उस गांव से सिर्फ 4 या 5 या 6 लोग आए हैं। अगर 26 जेठ के उर्स के रिलेटेड में बात करूं तो उस उर्स के महीने में उर्स के टाइम पे यहाँ लगभग मेरे गांव से 5 या 7 बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। काफ़ी सारे लोग शिरकत करते हैं। इस मौसम में थोड़े कम लोग आते हैं। जैसा माहौल है अभी कुछ यहाँ की सियासत का, उसका कोई असर भी इस उर्स पे नहीं पड़ता। हर साल की तरह ये इस साल भी बहुत अच्छे से मनाया गया है। इसमें किसी भी किस्म का कोई भी जो फ़र्क है वो नहीं पड़ता, चाहे कोई भी कानून हो या कोई भी हो, या हर लोग जो है अकीदत के साथ यहाँ पे शिरकत करते हैं। आज का उर्स शरीफ जनाब हज़रत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। 7 फगन का उर्स होता है। तो क्या कहें, एक बड़ी दुख की बात कर रहा हूँ। चलो ये कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यहाँ इस वक्त हमारे जनाब हज़रत बाबा मियाँ बशीर साहब जो इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं वो मौजूद हैं नहीं। तो बड़ा हमें अपनी जगह फ़ील है कि गरीब मस्कीन यतीम का वो गमख्वार थे। भूखा आता था, खाना मिलता था, जिसके जेब में दूर सफ़र करके यहाँ पे आता था तो गाड़ी किराया भी उनको अपने जेब से देते थे। तो ये 7 फगन बाबा जी साहब का उर्स शरीफ है, ये मनाया जाता है। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है 97वां उर्स शरीफ है। 97 साल हो गए इनका। तो बाबा जी साहब को उर्स मना, मैं इन चीज़ों में दूर दराज से आना ये भी एक बड़ी बात है, बड़ी सोच समझ वाली बात है, क्योंकि इन लोगों को एक
अकीदा अपना है, ये आते हैं, उनकी भी रूहानियत में बड़ी ताकत है कि वो ताकत इन लोगों को, अपने मरीदों को बुला के लाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लंगर का इंतज़ाम होता है तकरीबन इस साल तो मेरा ख्याल है इस वक्त भी कम से कम रात दिन में मिला के 11,000 15,000 तक यहाँ के लोग होंगे। मुस्तरात भी आती हैं सर्दी के हालात में, छोटे बच्चे भी आते हैं, प्यार से आते हैं, चूँकि ये और शरीफ कबलज़ीन वक्त से आ रही है और चलती रहेगी इंशाअल्लाह। तो इसलिए हमें इस पे अल्लाह ताला का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस कंगन में, इस इलाके में ऐसे वली हैं, अल्लाह के प्यारे हैं कि हम यहाँ पे दूर दराज से आए हुए लोगों के साथ मुलाकात हो जाती है। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।